So I'll just wait for 1 or 2 minutes for the participant to settle in and then start the session. I request everyone to be on mute so that we can have a smooth deliberation and all can understand. Yes, Kanimbaji. Okay, so I would like to ask you, have you ever used this custom formatting in your Excel? You can write in the chat box, you can reply in the chat box. कितने लोगों को custom formatting आता है already? Or how many of you know this shortcut key which I'm going to type in the chat box? You can reply. So I'm typing a shortcut key in the chat box. Let me know if you have used it ever. Control+1. Hide column. No, it is not hide column. Anyone else who know what is what is Control+1 is used for? I'll be sharing my computer, this screen, and you will be able to see my screen while in a short while. But before that, I want to understand how many of you actually know this shortcut key, Control+1 in Excel. Format the cell, right? So Rishi has mentioned it is used to format the cell, but yes, format cell. So we know a little about this. Today I'm going to show you how you can use this custom format. And now I'm sharing my screen. I hope the screen is visible now, everyone. Yes. Yes, sir. Great. Okay. So now on the screen, you can see that there is a Excel screen open, Excel open, and you can see custom format written. And there is a sequence written here. But what is custom format? Because when we talk about Excel, there are many shortcut keys which one should know so that the Excel use become easy. It becomes easier to use Excel for your work. So for that, I have prepared a list of shortcut keys which I'm going to discuss today with you all. And before I start with custom numbers, custom number formatting, let me give you some example of how we can identify the shortcut keys. And for that, we will start with control and number based shortcut keys. Okay, so control and number. So on my screen,
Can you see the keys which I'm pressing on the Excel towards the right hand side? Is it visible? No, sir. No, sir. No, sir. No. So let me share my screen again. Okay, now is it visible? I just press Control S. So Yes, sir. okay, fine. So we will talk about some of the shortcut keys which are control and number based shortcut keys. So let us start with control 1, control plus 2. And now when I select and drop it till the end, automatically it will give some numbers. Okay, so I'll start with control 2. Now all those who are using Excel and who are familiar with the shortcut keys, can you all reply in the chat box what is the use of control 2? In the chat box, what is the use of control 2? So I'll write down something over here. Hold selected cell. No. Okay, so I'm writing my name over here. And what I'm going to do is I'm going to copy this name till the end. Okay. And now I will show you the use of each. Bold the highlighted cell. Yes. So Rishi and Vani, Kalavni, both are correct. So when you press Control 2, basically it will bold the selected cell. What about Control 3? Control 3, when you press Control 3, it puts a underline. So basically, yes, Shweta is also right. So Control B we use to bold any cell. So basically what we use as Control B for using a bold feature, and similarly if you use Control I, it does the italic thing, but Control 3 is an alternative which is you can also use. Then Control plus U, what it does, Control U, what it does, Underline. underline. The same thing can be done by Control 3, sorry, and Control 4 is italic. So when you press Control 4, it converts the text into italic. I'm just zooming in so that you can see the screen properly. Control 5. Now what can you do with Control 5? So I'll just strike that key Control 5 and you can see that my name is cut. So it's strike off the name from the middle. Anything which is written in the cell, it gets striked off. What about Control 6 and 7? Anyone, any idea? Control 6 and 7. Control 3 Hide italic. any selection. Huh? Hide any selection image जो होता है ना सर. हाँ, वो Control 6 से नहीं होता है. 6 and 7 doesn't do anything basically. It is with Control 8. It is with Control 8. Okay, now I will show you what Control 6 and 7 does. So Control 6 and 7 doesn't do anything. So there is no shortcut key with Control 6 and 7 basically. Control 8, when you press Control 8, it will show you some outline symbols. Suppose you have any image on your Excel. If you have any image, then you can hide that image. आप उसको hide कर सकते हो या show कर सकते हो. So I'm inserting one image on the Excel and then I will show you how I can use it. Okay, so this is one image which I have inserted. Okay, and now I want to hide this image. Okay, now how can I hide this image? So when I press Control 8, when I press Control 6, it's going to hide. So basically Control 6 is used to hide. Yes, you were right, Chanchal. Control 6 is used to hide an image. Hide an image. So again, you press Control 6, it will bring back the image. So if you have any images on Excel and you want to hide them, you can use Control 6 for the same. Okay. Control 7 doesn't do anything. Control 8 does the outline. So when this outline is used, suppose we have some numbers and we are using grouping. So we can go to the data tab. In the data tab, you will see this grouping thing. So when you go to the data tab, you will see group.
So you can make a group. So I want to create a group of rows. So I select rows. So you can see that this there are two these things which are there. So I select these 5 rows and then I go to data tab and then I convert them into a group. So group and rows. So this is one group and this is another group. Now I want to hide these outlines. So what I do is I press Ctrl 8 and you will see that these outlines are not visible now. जो आपको पहले दिख रहा था वो अब आपको नहीं दिखेगा when you press Ctrl 8. So that is why that is the use of Ctrl 8, that is to hide or show outlines. And when do you get to see outlines? When you are using the grouping. Okay, so that was the use of Ctrl 2 to Ctrl 8 shortcut keys. Now suppose I want to draw border. What shortcut key I use if I want to have a outline or a border over here? So we go to home tab, that is Alt H and then B again for borders, and I want to have a border all around, so I'll press A. So that is how you can use Excel mein shortcut keys. So these are the different shortcut keys that I've shown you. I want to apply a background color to it. So what I can do is Alt H and again H, that is the highlighter. And suppose I want to put a little lighter background, so I can keep a background color. Now I discuss with you the shortcut keys from 2 to 8. What about 9 and 10? So let us cover that also. Control D I'll press and I'll make it 9 and I'll make it 10. So anyone in the group, anyone in the meeting who can tell me what does Control 9 do? What does Control 9 do? Hide a row, correct. So suppose I am on this first row and I press Control 9. You will see that it is no more visible. Control 1 abhi nahi dikh raha hai. How to bring it back? How to bring it back? What is the shortcut key to unhide a row which you have just hidden? So Control 9 is used to hide a row. Is used to hide a row. Hide. Okay. But how do you bring it back? What you have hidden? By pressing Control Shift 9, correct? Control Shift and 9 will bring it back, right? But it is not working as of now. Why? Because you have to select the range from where you have hidden the row. So suppose I hide all these, I want to hide all these rows from Control Hash to Control 4. So I am selected that. Now I press Control 9. You will see that all these rows are hidden now. Now I want to select the first 2 rows, that is row number 2 and row number 8. Okay. How do I do that? Which shortcut key I can use to select the entire row? Tell me. कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे आप पूरी रो एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं? यस, शिफ्ट एंड स्पेस बार, दैट इज द करेक्ट आंसर. शिफ्ट एंड स्पेस बार. Again you can use the shift and space bar, and what you can do is you can unhide by using Control Shift and 9. So that is the use of Control 9. We come to the last shortcut key in the series, that is Control 10. Again it is used to hide something, but what? Hide not a row but a column. So suppose I want to take a test of you and now I want to hide these 2 columns. So what is the shortcut key I just pressed to select the entire column? If you are listening to me properly and you are watching the video properly, this session, attending this properly. Control space. Control plus space bar, sir. Yes, correct. So Control space bar is the right key. Now I want to hide these 2 columns. So what I'll press Control 0. And you will see that both the columns are hidden. I want to show them again. So what I can do is a Control space bar. I'll select the 2 columns which are unhidden, and then I can do Control Shift and 0. So Control and Shift and 0 is not working. Control Shift 0. Control 0 helps you in hiding a column.
and Control Shift 0 will not bring it back. So what do? I can use Control Z instead. Or even if you have done some other steps and you want to unhide, so then what you can do is Control space bar. So Control space bar is used to select a column, right? I hide the column by using Control 0. I want to bring it back. Now, what should I do to bring it back? You can just use the right click and you can just say unhide. Okay, so this were the shortcut keys which are beginning with control and the number key. That is from 1 to 10 we have discussed. From 2 to 10 basically we have discussed. What is remaining is control 1, and for which this session is there and you all are here, right? So fine. Now control 1. So I'm now pressing control 1 and Sir, control is spacebar. control is space bar. You want me to repeat what is control is space bar? Anjali? So when you press control space bar, it selects the entire cell. So if I press control space bar here, it is selecting one column, that is column A. When I go to this active cell is in column B5, I press control space bar, it is selecting this column. But when I come here and I say control space bar, it is selecting 3 columns. Can anyone give me an answer why it is so? So it's in table format. No, that is not the right answer. What is the right answer? Cell is merged. Correct. Cell is merged. So which cell is merged? CDE3. C, D, E. So C, D, and E, C3, D3, and E3 I have merged using this merge and center. So when I'm pressing control space bar, it will select all the 3 columns. Okay. And how do I unmerge? How do I unmerge? Yes, how do I unmerge? Someone has typed something. Selected cell is merged. Okay. How do I unmerge the selected cell? I have merged these 3 cells. I want to unmerge. What I need to do is Alt H M C. Alt H M C and it will unmerge. So now you can see that control hash is in one cell. Again, if I want to merge, I can use Alt H, that is a home key. In the home tab, you will see all the hotkeys. The hotkeys are visible. Okay. So in the merge and center, you will see that M over here. So you'll have to press M. When you press M, you will see the 4 hot shortcut keys. You can just press C. So it will take you merge and center. Okay. Now this I have not touched upon. Okay. So now I'm going to begin with what you are all here for, and that is control +1. Okay. And I want to change the font color now. So I'll make it white. Okay. So this is control 1, and control 1 is used to format the cells. Format the cells. Okay. So when you press control 1, what you see is a dialog box on the screen. Can you all see a dialog box on the screen? I want a yes. Yes, sir. Yes. All the other participants, I just want to know that you are actively listening. So can you have a yes in the chat box, please? From Yes. all the participants, can we have a yes in the chat box? Okay, great. So that I know that people are listening. Okay, great. So yes, thank you. So control 1 is the format cell. So in the format cell has 5 sections, that is number, alignment, font, border, fill, and protection. Okay.
So today we are going to focus on this area first, that is the number. So when you say number, custom number formatting, okay, or format cell. So generally all the cells which you see in the Excel, so I come to this sheet and I've written some numbers over here. So it is 10, it is a date, it is a percentage, right? So suppose I type something over here, I type 10 is to 10. Okay, now if I come to this 10, I have it in the formula bar. Yeah, now you can see. So what do you see in this area, that in the home tab, in this, I'll just use the annotation spotlight. Okay, so you will see this thing, red color light on the screen now. Okay, so what do you see here? Where I'm pointing the mouse, what is written over here? Journal. General. So by default, the format is always general. The format is always general. Okay. Now, here I've written a number, but it is again showing a general format. Here, what it is showing. Now, what do you see here? Custom. What do you see here? The Date. date, And what do you see here? percentage, Percentage. Correct. So this is all different kind of format. Okay. What do you see here? What do you see here? custom, sir. Custom. Now I want you to focus on one thing. Just okay, what you can anyone read what you can see in column E4? I'm just The zooming. 100 kg, 20 100 kg, 120 kg. 120 kg. And if I press F2, you will see that there is a formula I have applied, that is sum is equal to E4 to E. E4 to E5. Okay. Now this I have already done, right? Yes, sir. Can you read it again? What you can see over here? 100 kg. 100 kg, And this is 20 kg. 20 kg, This is 120 kg. Okay. Now, don't read from here, just read from the formula bar. What do you see here? 100, 100. And when you click inside the set, what do you see? 100, 100. And what do you see now? 100 kg, Okay. When I click inside this cell, what do you see? 20. 20, 20. And what do you see now? 20 kg. 20 kg. When I click inside this cell, there is a formula. Okay. Ah. So why is it so that when I click inside the cell, it is only 100? In the formula bar, only it is 100, but you are seeing 100 kg. Is it a jadoo? kg क्या है? Kg क्या है? Kg is kilogram. So suppose I type 100 kg over here. Okay. So now when I am inside the cell also, what do you see now? 100 kg, 100 kg. What do you see here? 100 kg, Okay. Now I type 20 kg. Okay, kg. What do you see inside this cell? kg, 20 kg. And what do you see? 20 kg. Same 20 kg. Now I'll apply the same formula. Alt is equal to. Alt is equals to. What formula do you see? Odd is equals to sum. Sum. Okay. Oh, sorry. And I'm selecting these series D4 to D5. Yes, sir. Okay. Now, what should I get as an answer? Tell me. तो दोनों को सम कर देंगे तो 120 हो जाएगा. हो जाएगा. The yellow issue because it's mixed form. एक मिनट. So let me just press the enter key. And what do you see as the answer? 0. ये कैसे हुआ? से जादू. 120 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो ये क्या हुआ? Because it's in a mixed format, number and the text. Both are. It is both number and text. Excel understand only what? Numbers. Numbers. Binary number. Binary. Binary या integers it understand basically, right? But when you put here, यहाँ पे भी क्या है? Number है, यहाँ पे भी kg लिखा हुआ था, तो यहाँ आंसर आ गया 120, यहाँ आंसर आया 0. Why is it so? Tell me. Because if you understand this logic, तो जो आज मैं सर जनरल में जाके हम सेलेक्ट करते हैं.
जनरल में जाके यहाँ पे क्या लिखवा रहे हैं, जनरल। अब मैं इसको कर देता हूँ नंबर, ठीक है। यहाँ पे 20 kg में भी जनरल आ रहा है, मैंने इसको कर दिया नंबर, ठीक है। अभी कुछ बदला क्या है यहाँ पर? इज द आंसर चेंजिंग? आंसर क्या हो गया? सर डेसिमल। डेसिमल आ गए, लेकिन अभी भी क्या है, जीरो ही आ रहा है ना, जीरो ही आ रहा है ना। Yes, sir. सो यहाँ 120 है, यहाँ जीरो है, ऐसा क्यों? और यहाँ पर हमने क्या किया है, नंबर। यहाँ क्या दिख रहा है आपको अभी? कस्टम। कस्टम। यहाँ क्या दिख रहा है? कस्टम। यहाँ क्या दिख रहा है? कस्टम। कस्टम। यहाँ क्या दिख रहा है? जनरल। अब मैं जनरल। जब इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए 10 लिखा हुआ था, इसने क्या करा, डेसिमल अपने आप लगाए, ठीक है। when I go here and I do accounting, so it is bringing a rupee symbol. रुपीज। मैंने टाइप नहीं किया था rupee symbol. Suppose I type 10 over here, do I see a rupee symbol now? नो सर। No. But when I come here and I say counting, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली रुपीज रुपीज। कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप किया था, 10 यस किया सर। था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 10/01/1900, दैट मीन्स क्या आ गई, डेट। और अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूँ, देखो क्या लिखा हुआ गया, 00 जीरो जीरो जीरो। 00, सो इट इज आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 10,000 लिखता हूँ तो भी ये आ रहा है, 36 लिखता हूँ तो भी ये आ रहा है, व्हाई? एंड when you click over here, when you click inside, you will see some date with some number. यस How सर। this is happening, how it is possible, ये सब क्या हो रहा है? Can anyone tell me why it is happening? मैंने यहाँ पे लिखा 10, लेकिन ये इस फॉर्मेट में आ गया, because you have selected this format. You have selected this format from this cell, and when you click over here, number format, ये क्या है, what is this called, this arrow, down arrow, anyone? से ये एक्सपेंड कर देता है, एक्सटेंड कर देता है हाँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको जो इसकी चीजें। extension बोल सकते हैं, हाँ, it's called as extension. So when you click over here, you will see something which I showed you before. ये क्या है? What is this tab? What is this dialog? फॉर्मेट सेल। Format cell. And what was the shortcut key I mentioned to bring it? कैसे आता है ये shortcut? What is the shortcut key for format cell? Control 1. This one. Control 1. This is the shortcut key. ठीक है, let me increase this font size so that everyone remembers it. Control 1. Okay, so again I'm coming here and yes, so Control 1, when I press, it brings me to this. Okay, so you have different formats like number, currency, accounting, date, percentage, fraction, scientific, text, and there is something which is called as custom. कस्टम। तो कस्टम क्या करता है वो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ. दिस इज व्हाई वी हैव केप्ट दिस सेशन, कंट्रोल 1, ठीक है. सो कंट्रोल 1 से कस्टम नंबर फॉर्मेट कैसे काम करेगा. सो आई टोल्ड यू, आई गेव यू वन सिंपल एग्जांपल जहां पे आई टाइप दीज नंबर्स 100 kg, 20 kg, ठीक है. नाउ देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन एक्सेल व्हिच यू हैव टू नोटिस. सपोज आई टाइप 10 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है. अभी इसका नंबर फॉर्मेट हम हटा देते हैं एंड वी कीप इट एज जनरल, नो फॉर्मेट. देन आई टाइप 20, देन आई टाइप 30. ओके, नाउ आई टेक अ टोटल, alt is equals to, I get answer is 60. ठीक है, 60 आ गया. Everyone, you got this answer 60? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we have got this answer 60. Okay, let me put it in a box, a thick border. ठीक है. Now I type 10 kg or 10 liter, LTR, liter. Now did you understand any change? जब मैंने 10 टाइप करा तो वो राइट अलाइन हो गया. जब मैंने 10 के साथ लीटर लिखा है LTR तो इट इज लेफ्ट अलाइंड. ओके, नाउ आई राइट 20 liter LTR, it is left aligned. I write 30 LTR, it is right left aligned again. I'll apply the same formula, alt is equals to sum. अभी sum में when I applied this formula over here,
it selected the range automatically. खुद से ही उसने क्या करा, 10, 20, 30 को सेलेक्ट कर लिया. बट यही चीज मैंने यहाँ पे करी है. जब alt is equals to, is it selecting the range automatically? Yes or no? No, sir. No. No. No, Why? Why it is Because not? ये number There is no अभी आपने number. बोला There is no number over here because some happens, some can happen of a number only, and there is no number here. There is a number and a text. So I selected forcefully. मैं अपनी इच्छा से सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं बोलता हूँ निकालो इसका टोटल निकालो, तो क्या निकाल के दे रहा है वो? 0. 0. ठीक है, क्योंकि the Excel is not understanding that they are number. Now suppose I remove this letter over here from one place. What is the total you get now? 10. 10. 10, because 10 plus 0 is 10. Now I remove this letter over here. What do we get as the answer? 30. 30, because 10 plus 20 is 30, but this is liter. Suppose I remove this liter over here. What do you get as the answer? 60. 60. So again, ये कैसे हुआ फिर? यहाँ पे भी तो वही है 120, 120, यहाँ आंसर आ गया और kg भी लिखा हुआ आ गया. This is because I have done a custom formatting over here. क्या किया है मैंने? Custom format use किया है. अब कैसे किया है वो बताता हूँ, ध्यान से देखना. Everyone just watch this carefully because that is the lesson for the first lesson that you are going to learn about custom number format. तो I press Control 1. अभी देखिए Control 1 में ये कहाँ आया है? Custom में. ठीक है, What is there in this custom? ये बहुत लोग नहीं जानते हैं. So general लिखा हुआ आता है, उसके बाद 0 है, then you have dot 0 dot 00, then you have hash comma hash hash 0, then you have hash comma hash hash 0.00. Then there are so many formats like this. Then you have some dates also, and you have hour and minute, AM PM, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है, कितने लोगों को ये समझता है कि ये क्या लिखा है? How many of you attending the session over here, do you understand what is all this? No, sir, I don't understand. Just write an answer yes or no. सर बस इसमें से खुद समझ में आ रहे हैं, लाइक डेट मंथ और ईयर वाला था हाँ, कुछ समझ और में आ रहा है? टाइमिंग था, डेट वाला था. ये सारी चीजें आ रही हैं समझ में, क्योंकि ये फॉर्म वगैरह उसमें यूज किए हैं तो आ रही है. बाकी का नहीं आइडिया. बाकी का नहीं है. ठीक है, तो कुछ ही समझ में आ रहा है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कैन आई पुट इट लाइक दिस कि कुछ ही समझ में आ रहा है, बाकी कुछ समझ में जी सर. नहीं आ रहा है. बट अभी आपको थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम मिनट्स and you will understand everything. So we'll start with this very simple thing. ठीक है, for this we need to understand this. उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट और बताता हूँ जो हमने किया था. ठीक है, you will understand everything which I am going to tell you now. So I have this value. ठीक है, मैं इस नंबर यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर लिखूंगा 1 and I want to copy it till down. So what I am doing, Control D. तो इसने डाउन कॉपी कर दिया. I want to bring it into center, Alt H A C, ये सेंटर में आ गया. ठीक है, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है? Which key is this? So control down. नहीं, what you can see on the yellow background. Control plus shift. Control plus shift plus and dash dash dash. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to press this key with this number series. ठीक है, तो अभी हमने कंट्रोल प्लस 1 2 3 4 देखा था. अभी हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 2 3 4 देखेंगे और इसी पे मैं अप्लाई करूंगा. ठीक है, एंड यू विल गेट सम डिफरेंट आंसर्स. करेक्ट? Yes sir. Now everyone just watch this screen properly and you are going to see something amazing today. Okay, so control shift and 1. Control shift and 1. Okay, so what do you see? तो वैल्यू पॉइंट में आ गई. पॉइंट में आ गया, तो यहाँ पे क्या लग गया? डेसिमल. सो आई एम राइटिंग डेसिमल ओवर हियर. ओके, नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड 2, दैट इज द एट द रेट की. ओके, सो 1 के ऊपर में इट इज नॉट टिल्ड, इट इज लाइक एक्सक्लेमेटरी. सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस साइन. सो 2 के ऊपर होता है एट द रेट. सो यू कैन से कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट और कंट्रोल शिफ्ट 2. what is the format now? It is date and टाइम सर. so it is date and time. Date and time.
Now I'm pressing Control Shift and 3. Control Shift and 3. What do you see now? सर ये डेट मंथ ईयर आ गया. Here, मतलब date. It is a date format. Okay. I've written everything here on the left hand side. I'm just repeating it so that you understand what is happening over here. Now I'm pressing Control Shift and 4. What do you see now? सर ये अकाउंट रुपीज में आ गया. ये रुपीज में आ गया, ठीक है. So it is a currency, rupee, ठीक है. It is a rupee now. ठीक है. Suppose I type 100 over here और ये 100 मुझे रुपीज में चाहिए. तो आप क्या करोगे जनरली, आप यहाँ जाओगे इधर नंबर फॉर्मेट में और यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट करोगे. यही करते हैं सब लोग, यस सर. बट ये सब नहीं करना है. What you have to do is you have to just press Control Shift and 5. Sorry, Control Shift and 4. और देखो क्या हुआ, 100 किस में कन्वर्ट हो गया? रुपीज में. रुपीज में. So that is the utility of having learning shortcut keys. ठीक है. अभी मुझे 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. So what key I should press? Control Shift and 5. 5. So it has become 100%. So if you want to convert something into percentage, we'll press Control Shift and 5, and then last is Control Shift and 6. That is 1.00 E plus 00. This is called as scientific, but it is not used, and there is some others also. So all these things that I've done, that I've showed you, Control Shift and 1 के साथ में, this is nothing but custom format. So this is 1. Okay, so number जब हम डेसिमल में करते हैं तो with currency, accounting, date, time, percentage, fraction and scientific. Okay, and this text and special and custom. तो ये सबको समझ में आया. Control Shift and arrow number keys. Okay, so just put it over here. So we are using this number. Now understand this custom format. ठीक है. थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल लगेगा, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एंड आई एम गोइंग वेरी स्लो, ठीक है, स्टॉप मी इफ, और अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं तो आप मुझे बोलना स्लो होने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सर ये फॉर्मेट किस चीज में यूज होगा सर? कौन बोल रहा है? व्हाट यू आर आस्किंग अगेन? कैन यू कम अगेन? आपने कुछ पूछा अभी किसी ने, ये कहाँ यूज होगा? दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग. चलिए मैं आपको समझा रहा था. व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज कि यहाँ पर हमने 10 20 30 लिखे हैं. मैं आपको ये बताता हूँ इसका यूज क्या है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं. व्हाई यू आर हियर, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस. ओके, सो मैंने 10 20 30 लिखा. अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे केजी भी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है. तो इसके लिए हमने क्या किया, Control 1 पे हम गए. कस्टम्स में आप देखिए यहाँ पे 0 और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर केजी लिखा है. ठीक है, अभी मैं सेम चीज यहाँ पे भी करने वाला हूँ. ठीक है, तो मैंने ये सब नंबर सेलेक्ट कर लिए, मैंने Control 1 प्रेस करा और यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेट आता है वहां पे मैंने जनरल को डिलीट कर दिया एंड आई एम पुटिंग अ 0. ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो जब आप एक्सेल में कोई भी नंबर टाइप करते हैं, इसको यहाँ पे हम कस्टम में 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी नंबर हम डालें उसके आगे लीटर लिखा हुआ आना चाहिए. यहाँ पे हमने इनिशियली क्या लिखा था, लीटर. तो आई वांट कि यहाँ पे इस नंबर के आगे इन्वर्टेड कॉमा में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके आप यहाँ पे चाहते हो कि लीटर लिखा हुआ है, क्या है, लीटर, और आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए. ठीक है, बस हमने क्या करा, 0 लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, स्पेस दिया, इन्वर्टेड लीटर लिखा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओके प्रेस कर रहा हूँ. देखिए क्या हुआ, देखा आपने क्या हुआ, लीटर लिखा हुआ आ गया, सभी के आगे लीटर लिखा हुआ आ गया और टोटल भी हो रहा है, अब सम भी. हाँ सर, सम भी हो रहा है. ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लीटर, LTR.
LTR, ठीक है। यहाँ पे भी मैं टाइप करता हूँ LTR और यहाँ पे भी मैं टाइप करता हूँ LTR। अब ये बताइए इस वाले लीटर में और इस वाले लीटर में क्या फर्क है? ये तीन दोनों अगर मैं रोज में आपको कंपैरिजन करने के लिए बोलूं, क्या डिफरेंस है बताइए इन दोनों में? सर वो आपने इन्वर्टेड कॉमा कस्टम में जाके इन्वर्टेड कॉमा में लीटर लिखा था तो वो समझ गया था एक्सेल की ये लेटर है और नंबर अलग अलग है। इधर नहीं समझ पा रहा है कि लेटर और नंबर अलग अलग है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख रहे हो तो आपको 10 ही दिख रहा है, यहाँ पे 20 ही दिख रहा है और यहाँ पे 30 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 के साथ में लीटर दिख रहा है, इसलिए लेफ्ट लीटर भी दिख रहा है। यहाँ पे लीटर, और इसलिए इसने इसका टोटल नहीं लगाया लेकिन इसका आंसर क्या दिया? 0। रेंज दे दी है D4 to D60। हाँ, 0 दे दिया, ठीक है। अब यही करने के लिए ये मैंने कैसे किया, ठीक है, ये मैंने आपको करके बताया, लेकिन इसका लॉजिक क्या है? ये हमने ऐसे ही क्यों लिखा? 0 इन्वर्टेड कॉमा स्पेस लीटर और क्लोज कर दिया, ऐसे ही क्यों लिखा? और अगर ऐसे लिखा है तो किसी और का क्या मतलब होता है? सपोज अगर मैं यहाँ से ये केजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब करता हूँ ओके, तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ गया? 10 kg, ठीक है। और 10 kg के नीचे लिखा 20 लीटर और 30 लीटर और 60 लीटर में आंसर आ गया, जबकि ये तो केजी है। समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? यस यस सर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड, ठीक है, एंड व्हाट इज कस्टम फॉर्मेट एंड व्हाई वी आर लर्निंग। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि व्हाई वी आर लर्निंग। ये तो सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए प्लीज। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच आई कैन कम्युनिकेट विद यू, इसलिए आई वांट एवरीवन टू टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सब लोग यस लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यू आर गेटिंग थिंग्स। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। अब आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ, ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोलेगा थोड़ी देर के लिए, सब लोग सुनेंगे मुझे। सो कस्टम फॉर्मेट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और टेक्स्ट। ये इसका 4 ब्रेकअप है। इसका मान लीजिए 4 पार्टीशन किया हमने। नंबर कस्टम फॉर्मेट में पहला पॉजिटिव नंबर होता है, दूसरा नेगेटिव नंबर होता है, तीसरा जीरो होता है, चौथा टेक्स्ट होता है। जनरली जो काम में आते हैं वो ये 2 फॉर्मेट काम में आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये दोनों थोड़े कम काम में आते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है तो मुझे बताना सारा ही पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया है, एक सैंपल लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं येलो बैकग्राउंड से हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। So this is only a sample which I am going to explain. So इस सैंपल में से जो पहला पार्ट है ये, अब हम डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने 4 पार्टीशन दिखाए थे मैंने आपको, ठीक है। किसी को याद है क्या थे ये 4? वो 4 थे: पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और टेक्स्ट। अब इसी का मैं एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि ये जो पहला पार्ट है, जिसको जो सेमी कोलन से पहला वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां तक का, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव नंबर। ये क्या बता रहा है? पॉजिटिव। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव है। फिर हमने कोलन लगा दिया, उसके बाद वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव है, उसके बाद जो कोलन है उसके बाद वाला ये जीरो है, और इसके बाद वाला वो क्या है? टेक्स्ट, ठीक है। और हमने रुपी, स्टार, ये सब कुछ लगाया। अब ये सब क्या होते हैं? ये सिंबल्स हैं, ठीक है। स्टार भी एक सिंबल है, हैश भी सिंबल है, कॉमा भी सिंबल है, बट ये करता क्या है उसके लिए आपको ये समझना होगा जो मैं आगे समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। सो आई हैव रिटन सम नंबर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको 10.26 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 10.20 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10.26 है, यहाँ पे 10.0 है, और हमने क्या लिखा है? 0। उसका मतलब क्या है? दिस इज अ इंडिकेटर and this is what it does. What it does, and these are examples. I didn't understand that. I did not explain yet. Okay, now listen. So these are some examples. This is what it does, and this is an indicator.
अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको 10.26 एवरीवन, इट इज 10.26 ओनली। यस सर। Yes, sir. अभी मैं F2 दबाता हूँ, अभी देखिए क्या दिख रहा है आपको, F2 दबाया मैंने, सेल के अंदर 10.256। 10.256. हाँ 10.256 it is. So actually Yes, sir. what I've written in the cell is 10.256, but सर ये हो कैसे रहा है 10.256 और 10.25? वही मैं समझा रहा हूँ। अभी आप 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, और ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं इसलिए कोई कवर ही नहीं करता है, लेकिन ये सेशन इसलिए रखा गया है कि आप एक बार सीख जाएंगे, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा पेशेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है 20। लेकिन अब मैं F2 दबा रहा हूं, मैं सेल के अंदर चला गया, लेकिन एक्चुअली में लिखा क्या है मैंने, क्या लिखा है 10.2। 10.2, और दिख क्या रहा है 10.2। 10.2, 20। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, ये जो क्यूरियोसिटी है उसका आंसर देता हूं मैं। ये हो रहा है कंट्रोल 1 से। कंट्रोल 1 में हम गए कस्टम में, ठीक है, और देखिए कस्टम में मैंने क्या करा है 0.00 इसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप अगर सब लोग लैपटॉप से अगर जुड़े हुए हैं, लैपटॉप से लॉगिन किया है आपने अगर, और अपने लैपटॉप में आप ये नंबर टाइप करेंगे 10.256 और कंट्रोल 1 दबाएंगे, और यहाँ पे आप टाइप करना है 0.00 और एंटर कर देना है, तो भी आपको ये दिखेगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 101.101, अभी क्या दिख रहा है 101.101 दिख रहा है सबको। यस सर। अभी जादू देखिएगा, कंट्रोल 1 करा मैंने प्रेस, मैं आ गया कस्टम पे, और यहां मैं जनरल की जगह लिख रहा हूँ 0.00। क्या लिखा मैंने 0.00। जब मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यस सर। तो जीरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा इस एग्जाम्पल में 101। 101, वेरी गुड। उसके बाद हमने लगाया एक डॉट, ठीक है, डॉट क्या बता रहा है डेसिमल। डॉट के बाद कितने डिजिट दिखाई देंगे वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जीरो से। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करूं, डॉट के बाद हाउ मेनी डिजिट्स विल बी विजिबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ जीरोस आई एम पुटिंग हियर। तो मैंने यहाँ कितना जीरो लिखा है 20। 20। तो अभी यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ मुझे। सर एक जिसमें 10 रहेगा, बस 101 का 1 हट जाएगा, लास्ट का 1 हट जाएगा इसमें से। लास्ट का 1 हट जाएगा यस या सर। जीरो की जगह 1 हो जाएगा। सर 0 की जगह 1 नहीं होगा, 0 तो रहेगा ना। नंबर तो एक आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 से छोटा होगा तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे 101.10 हो गया, मतलब 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट रहे, और जैसा कि संजय ने कहा था कि अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा पहले वाले नंबर में, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, इस 1 को 7 बना देते हैं, ठीक है। अब ये 5 से ज्यादा रख दिया मैंने तीसरा डिजिट। अब देखिए क्या होता है, इनकी बात तो बिल्कुल सही निकली, मतलब ये नंबर क्या हो गया 101.11। 1 इसका मतलब ये जो 0.00 है ये कर क्या रहा है, ये तो यही नहीं दिख रहा है, ठीक है। 0.00 जो है ये क्या करता है, ये आपके डेसिमल से पहले वाले पार्ट को, मतलब दिस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको इंटैक्ट रखता है, क्या रखता है, इंटैक्ट एज इट इज। लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट है ना वो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ये नंबर लेके आएगा। अगर ये नंबर जो तीसरा नंबर आपने डाला है वो 5 से कम है या 5 भी है तो ये रिप्लेस कर देगा उसको, 5 से ज्यादा होगा तो, अगर 5 से कम होगा तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं यहाँ पर कस्टम में 0.00 और एक और जीरो लगा देता हूँ, और एक और जीरो लगाता हूँ, 4 जीरो, अब क्या होगा बताइए। सर प्लेस पॉइंट के बाद जो प्लेस रहेगा वो 4 डिजिट तक बढ़ जाएगा। अगर ये 1.0 है तो उसके बाद 3 0 हो जाएंगे 1 के बाद।
10 पॉइंट, हाँ point 0.10 लिखा है, उसकी जगह मतलब वो पॉइंट के डिफाइन बाद करेगा। 1 एंड 3 0 लग जाएंगे सर। 30 लग जाएंगे। अच्छा, तो मैंने तो 104 लिखा हुआ है, तो हाँ तो सर एक 104 तो उसमें 0। डिजिट रहेगा, एक डिजिट रहेगा ना, तो और बाकी के सारे जीरोस हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, या फिर अगर प्लेस वैल्यू नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक 10147 तो वो डिजिट्स रहेंगी सर। पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद में 4 डिजिट रहेंगी। एग्जैक्टली करेक्ट। तो देखिए ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने, श्वेता ने। 101 में सिर्फ 101 टाइप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी पॉइंट मैंने लगाया ही नहीं है और पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं लिखे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 101.104, लेकिन यहाँ पे 1040 आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में डिफाइन कर रखा था कि मुझे पॉइंट के बाद 4 जीरो चाहिए, ठीक है। अब यही चीज मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल 1 पे जाऊंगा मैं और कस्टम फॉर्मेट में जाके ये वाला फॉर्मेट ले लूंगा जो मैंने बनाया था। अब जो मैंने बनाया था वो गायब नहीं होता है, वो हमेशा रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 0.4 टाइम 0, सबसे लास्ट में आ गए हम और हम करते ओके। अब क्या दिख रहा है आपको, तो 101 पॉइंट के बाद 4 जीरोस हैं। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई डेसिमल में पॉइंट नहीं था, डेसिमल के बाद कोई नंबर मैंने नहीं लिखा था, तो इसने अपनी तरफ से जीरोस लगा दिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज क्या है, तो यूज ये है कि कई बार हमारे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट्स देनी होती है, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक, या डेसिमल्स आए हुए होते हैं और डेसिमल्स को हटाना होता है, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से हटाना चाहते हैं कि वो रहे भी और हट भी जाए। क्या बोला सर आपने? कि वो हो पर शो ना हो, मतलब ऊपर स्क्रीन पर। एग्जैक्टली तुम हो लेकिन तुम दिख नहीं रही हो, लेकिन तुम हो, तुम्हारा होने का एहसास है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये है जीरो, ये है जीरो। तो जीरो क्या करता है, इट फोर्सफुली शोज नंबर ऑफ जीरोस, और इसको मैं ऐड कर देता हूं आफ्टर द डेसिमल, करेक्ट, आफ्टर द decimal, it forcefully shows the number of zeros after the decimal, ठीक है। अब मैं ये नहीं दिख रहा था, इसको हमने रेक्टेक्स कर लिया है और इसका साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये चलो रहने देते हैं, इसको फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। चलिए सेकंड, यहां आप देखिए, यहां मैंने क्या लिख रखा है 10.256, ठीक है। और अभी क्या दिखा रहा है ये 10.26। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है 10.2, और अभी भी क्या दिखा रहा है 10.2 ही दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल 1 पे जाता हूं मैं फिर से, और आप देखिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने, हैश डॉट हैश हैश। यहाँ पे 0.00 नहीं है, क्या है, हैश पॉइंट हैश हैश, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो हैश लिखा हुआ है वो बोल रहा है शो ब्लैंक फॉर लेसर डेटा। क्या लिखा है, शो ब्लैंक फॉर लेसर डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो नंबर है वो तो एज इट इज छोड़ दो, मतलब हैश जो है वो पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जीरो कर रहा था, लेकिन डॉट पॉइंट के बाद जो 2 नंबर है वहां पे 2 हैश लगे हुए थे, मतलब अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तब तो 2 ही दिखाएगा, या 3 है तो भी 2 ही दिखाएगा, या मैंने 4 कर दी तो भी कितनी दिखा रहा है, 2 ही दिखा रहा है। और अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ यहाँ पर तो क्या हो गया, ये 8 हो गया, मतलब ये 6 था, इसकी वजह से यहाँ पे 3 होता तो ये 7 ही रहता, मतलब ये 2 ही डिजिट दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप क्या करिए 10.2 और मैंने 4 डिजिट डाल दी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है इसने, जीरोस हटा दिए और 2 ही दिखा रहा है, बाकी डॉट के के सब बाद हटा 2 दिए। ही दिखा रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट दिखा रहा था, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अब कंट्रोल 1 करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैश डॉट हैश 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 हैश, ठीक है। अब हैश डॉट हैश हैश अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हैश के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए थी ना। अगर मैं 10.2.5 लिखता हूँ तो देखिए क्या दिख रहा है, 2.5 दिख रहा है, 10.25 दिख रहा है। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो देखिए क्या दिख रहा है, 2.6, 10.26। अगर मैं 267 कर देता हूँ तो क्या हो गया, 10.27 हो गया। लेकिन
अगर मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो इसने क्या करा, 0 को हाइड कर दिया। हाइड कर दिया। सो आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड हैश? Yes, 0 will count 0 also, hash will count only numbers. Exactly. So 0 count 0 also, hash will count only the numbers. So it shows blank for lesser data. Now what do you mean by lesser data? Lesser data का मतलब कि अगर मैंने सिर्फ 10 लिखा है यहाँ पर, तो ये 10 डॉट आगे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बट डॉट लगा दिया इसने। अगर मैं यहाँ 50 लिखता हूँ तो ये देखो 50 के बाद डॉट लगा रहा है। ये कभी आपने एक्सेल में देखा है ऐसी चीजें होती हुई? नो सर, मैंने नहीं देखी। हाँ, तो ये कस्टम फॉर्मेट नंबर से होता है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कस्टम फॉर्मेट। सो आई हैव कवर्ड दीज टू फर्स्ट, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग अहेड, वी विल रिवाइज अगेन एवरीथिंग वंस वी आर डन, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम बचेगा हमारे पास, कुछ चीजें कवर ज्यादा करनी है। देन यू हैव दिस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्टली ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। ये बेस तो आपने समझ में आ गया कि पहला पॉजिटिव नंबर होता है, फिर नेगेटिव नंबर होता है, फिर 0 होता है और टेक्स्ट होता है। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज डायरेक्ट, दिस इज नीड इंडिकेटर एंड दिस इज प्लेस होल्डर। ओके, सो डायरेक्ट में क्या आता है, डॉलर, प्लस, माइनस, एट द रेट, सॉरी दिस एंड सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन। नीड इंडिकेटर में आता है हैश, स्टार, एस्ट्रिक और ये परसेंटेज, और प्लेस होल्डर में आता है क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एट द रेट, ठीक है। अब इनका यूज क्या है वो इधर दिखेगा। हमने अभी तक 2 चीजें देखी हैं, 0 और हैश। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। मेंटेन विजुअल अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेन विजुअल अलाइनमेंट, व्हाट डज दैट मीन? बताओ मुझे। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे समझाइएगा कि मैं एक ही नंबर लिखूंगा 4 4 4, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। ठीक है, यहां मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये मैंने 4 लिखा है तीनों जगह पे, इसको मैं एक राउंड बॉक्स से कवर कर देता हूँ, ठीक है। और वील पुट 3 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ ये, और यहाँ। Now you tell me what is the difference between the 3 alignments? सर अलाइनमेंट्स में रहता है कि जो भी हमने नंबर या डिजिट लिखा है वो सेंटर में रहेगा, टॉप में रहेगा या बॉटम में रहेगा, वो चीजें हमें शो करता है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपने सही समझा है कि ये जो है ये लेफ्ट और टॉप अलाइन है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट, राइट और सेंटर कैसे डिसाइड करते हैं? ये एक ही लाइन में है लेकिन लेफ्ट में आ रहा है, ये मिडिल में आ रहा है और सेंटर में आ रहा है, ये बॉटम में आ रहा है और राइट अलाइन आ रहा है। तो ये जो अलाइनमेंट होता है ना, यहाँ पे 6 बटन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना माउस रखता हूँ तो ये क्या बोल रहा है? टॉप अलाइन। यहाँ रखता हूँ तो ये बोलता है मिडिल अलाइन, और यहाँ रखता हूँ तो ये क्या बोलता है? बॉटम अलाइन। बॉटम। तो दिस इज टॉप, दिस इज मिडिल, दिस इज बॉटम। यहाँ मैं अपना सेल रखता हूँ माउस तो ये क्या बोलता है? लेफ्ट अलाइन, दिस इज लेफ्ट अलाइन। यहाँ क्या बोलता है? सेंटर, दिस सेंटर, एंड दिस इज राइट, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ 0.00, ठीक है। नहीं आया यहाँ पर 0.00 लगाया था, आया तो नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हैश, छोटा सा ये एक्सट्रिक, सॉरी अभी आ गया। यहाँ पे भी लगाते हैं .000 और यहाँ पे भी लगाते हैं और इसको कर देते हैं हैश .0000, ठीक है। अब ये 3 मैंने अलग अलग अलाइनमेंट में है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप देखना। ये मैं तीनों को एक जैसे ले आता हूँ, नीचे लिया है तीनों को मैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो है इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
और इसको भी यहाँ कॉपी करता हूँ, अब यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। क्या आपको ये डॉट की बात कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या ये जो डॉट है तीनों जगह 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 4 0 है। डॉट एक ही जगह पे अलाइन दिख रहा है या अलग अलग जगह पर है? अलग अलग जगह। अलग अलग जगह पर है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे तीनों डॉट एक के नीचे एक के नीचे एक दिखने चाहिए, तो कैसे करना पड़ेगा? I want all the dots, 3 dots should be in symmetry. It should be aligned properly. What should I do? Then either I will have to add 2 zeros over here, 1 0 over here, and now अभी तीनों डॉट एक ही लाइन में दिख रहे हैं आपको? Yes. ठीक है। Yes, sir. लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? जीरोस ऐड करने पड़े, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दूसरा तरीका क्या था? या तो मैं यहाँ से 0 कम करता, यहाँ से 2 0 कम करता, यहाँ से 1 0 कम करता, तब ये डॉट एक लाइन में आ जाती। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। I don't want to disturb the data. I don't want to put any more zeros. I don't want to put any zeros myself. ये तो मैंने खुद ने करे ना। अगर ऐसा 400 नंबर लिखे हो, यहाँ से लेके बहुत सारे हो, तो फिर आप क्या करोगे? दिन भर यही करते रहोगे, जीरो लगाते रहोगे, लाइफ ही जीरो हो जाएगी हमारी ऐसे। तो फिर क्या करेंगे हम? We will use what? Question mark. क्या लिखा है यहाँ पर? विजुअल मेंटेन विजुअल अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। आया या नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अलाइनमेंट। अब मेंटेन का मतलब क्या होता है? मेंटेन करना। विजुअल मतलब जो दिख रहा है, और अलाइनमेंट मतलब एक तरफ से एक जैसा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए 10.23 और 10.236, क्या ये अलाइंड है एक जैसे? No. No, because it has 2 digit after the decimal. It had 3 digit after the decimal. Are they aligned? No, sir. Are they aligned? यस सर। Yes, Yes, now sir. there are. They are aligned. But when I click over here, how many numbers are there here after the decimal? 3, 5. 3. And how many numbers are there here? 2, तो फिर ये कैसे हुआ? question mark से. क्वेश्चन मार्क से, करेक्ट। अभी क्वेश्चन मार्क कैसे लगा? 0.0 क्वेश्चन मार्क, 0.0 Question mark. 0 का मतलब क्या हुआ? ये जो 10 है, ये डॉट से पहले वाला जो 10 है वो 0 है। डॉट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? 2 डिजिट। तो अब आप बोलोगे सर ये काम तो 0.00 से भी हो सकता था, हैश डॉट हैश हैश से भी हो सकता था, तो हम क्वेश्चन मार्क ही क्यों लगाएं? सर क्योंकि इसमें 5 के नीचे अगर रहेगा तो वो वैसा डेसिमल बताएगा, और 5 के ऊपर रहेगा तो वो उसको सेट कर देगा वैसा। सर डिजिट्स मतलब डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स रहेंगी अपनी वो सारी दिखाएगा, और अगर अपन वो लगाएंगे तो अपनी वो डिजिट्स को राउंड फिगर में कर रहा है या कम कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 0.00 भी कर रहा है, वो तो 0.00 भी कर रहा है। हाँ वो तो वो भी कर रहा है ना। I don't agree. ये देखो यहाँ नहीं पर बट सर जैसे 0.0 वाला जो है वो 10 मतलब जैसे 10.201 था तो उसको 20 तक ही दिखा रहा है वो, बट अगर अपन वो क्वेश्चन मार्क वाला लगा देंगे तो वो 10.201 दिखाएगा, मतलब तीनों दिखाएगा, और फिर भी डेसिमल्स अलाइन रहेंगे। अच्छा No, sorry. I didn't get sir what he said. Sorry. नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े से, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो हमने क्या करा, 0.0 क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको? 10 के 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 10 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4, लेकिन कितने आए हैं यहाँ पर? 10.2। ठीक है, 2 को उसने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, यहाँ कितने डिजिट है 10 के बाद? 1। लेकिन यहाँ पे कुछ भी उसने ऐड नहीं करा, ना 0 ऐड करा है ना और कोई नंबर ऐड किया है, लेकिन क्या ऐड कर दिया?
ये डॉट के नीचे डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर? Yes, sir. So कैसे? if I've made it aligned but not added any number. हाँ, so how could you make align without any number, adding any number? Just shifting the place of that हाँ, तो how did he shift? मतलब what is because what of did that you do? question mark. No, Yes. because of the question mark, that place has been shifted. But how? By adding what? I guess center align or something. No, alignment is not changed. And even if you change the alignment, it will not do it. Alignment is same only. But what is there? It is very basic. मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सेल को अगर हम डीपली नहीं देखेंगे ना तो ये सब चीजें नहीं समझ में आएगी। या आपको लगेगा कि ये, क्योंकि we don't go that deep. I am a trainer on Excel. I'm training people from last 10 years. इसलिए I know all these things and I go very deep because I have interest in it. लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पेस होने से ये डॉट के बाद ये डॉट अलाइन हुई है. सो देयर इज अ ब्लैंक स्पेस ओवर हियर. कैन यू सी 6 के नीचे क्या है? 6 के नीचे क्या है? Blank. ब्लैंक space. है, ब्लैंक स्पेस है. ठीक है. नाउ व्हाट आई डू इज कंट्रोल 1 इस 0 पॉइंट क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 0.00 लेके रहा हूं. क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? Second digit, second place is replaced by 0. एग्जैक्टली. मतलब cover कर दिया वो. देयर वाज अ ब्लैंक. वो वहां पे क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि मैंने फॉर्मेट में क्या कर दिया? 0.00 कर दिया. अभी मैं एक काम करता हूँ, हैश डॉट हैश हैश कर देता हूँ. अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? Alignment is changed. Alignment is changed. Avoid. Alignment is changed because what does hash do? Hash will not Not take 0 and take take 0. all other numbers. Exactly. And now what I'm doing is I am doing again what I did, 0.0 question mark. So now do you get the difference between 0, 0, hash and a question mark? Yes, sir. बस ये तीन ही चीजें. अभी 1 घंटा हो गया, आधे घंटे से मैंने ये स्टार्ट किया. इन हाफ एन आवर आई हैव एक्सप्लेन यू ओनली 3 थिंग्स, बट दैट टू वेरी डीपली सो दैट एवरीवन हु इज अटेंडिंग दिस सेशन इज क्लियर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कुछ First, draw your pattern to unlock the device. किसी को कुछ समझने में दिक्कत हुई है या कुछ ऐसा डाउट आ रहा है आपको तो यू कैन आस्क, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. Everything clear till here? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. now comes something very interesting. ठीक है, जो हम practically use कर सकते हैं. Generally होता क्या है, when we prepare balance sheet, because there are so many chartered accountants here in this. ठीक है, या आप normally कहीं पे भी काम करते हैं और आप बैलेंस शीट बना रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, जैसे my channel has got 1000 subscriber. So we can write 1000 also, we can write 1K also, right? So I want to write 1K instead of 1000. But मैं चाहता हूं कि मैं तो लिखूं 1000 लेकिन वो कन्वर्ट 1K के अंदर हो जाए. ठीक है, लिखूं कुछ और दिखे कुछ और, तो वो कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? वो कस्टम फॉर्मेट से होगा. देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको लिखा हुआ? लिखा क्या है? 1000. दिख क्या रहा है? 1K. कैसे? ऐसे 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के साथ क्या लगा है? K. K. 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? एनी वैल्यू इन एक्सेल, एनी न्यूमेरिक वैल्यू इन एक्सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 0. ये याद कर लो, रट लो कि जब भी हम कस्टम फॉर्मेट करेंगे और 0 लिखेंगे इसका मतलब ये एक नंबर है. और उस नंबर के बाद अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं तो मैं कॉमा लगाऊंगा और उस को लिख दूंगा. ठीक है, जो भी मैं ऐड करना चाहता हूं. तो एक काम हमने पहले भी किया था, 0 के बाद आपने केजी लिखा था. ठीक है, तो इसमें
और इसमें क्या डिफरेंस है बताओ? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तो दिस? उसमें हमने कॉमा यूज नहीं किया है, इसमें कॉमा यूज किया है। वेरी गुड, कॉमा यूज करेंगे तो मतलब वो उस वैल्यू के बाद उसको रिप्रेजेंट करेगा। exactly correct. So now I am going to show you something here. Suppose I want to write 1 lakh. ठीक है, this is 1 lakh. Everyone knows Yeah. this is 1 lakh. But I want to show the amount in thousand. मैं यहाँ पे लिखता हूँ rupees in thousands. ऐसे ही लिखते हैं ना हम, ठीक है? Yes, sir. So if I have to convert this 1 lakh into thousand and I don't know how to do it, what do I do generally? Is equals to divide by 1000. तो ये आएगा ना थाउजेंड में। 1 लाख को अगर मुझे थाउजेंड में करना है तो कितना होगा? 100,000 इज 1 लाख, करेक्ट? Am I right? Yes. But I will have to use I had to use a formula to do this. Now I don't want to use any formula. I want to say 100k दिखा दो यहाँ पे, 100k लिखा हुआ आ जाए तो everyone will read it as 100,000. ठीक है, तो 1k is equal to 1000. तो वो कैसे कर सकते हैं? वो करने के लिए मुझे कंट्रोल 1 दबाना पड़ेगा और Custom यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0 is equal zero, zero. k in inverted comma k. Okay, and I'll say अभी क्या आ गया? 100k लिखा हुआ आ गया. And suppose you want a space in between. You want a space in between. What you can do is inverted comma के बाद एक space दे दो यहाँ पर. ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे को यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? दिस इज क्या लिखा है मैंने? 1, लेकिन दिख क्या रहा है? 0m मिलियन. ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 लाख कर देता हूँ. क्या इसको देखो, ये क्या लिखा है मैंने? कितना है, कोई पढ़ सकता है? आई विल जस्ट जूम इट. Can you count the number of zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 1. How much it is? 1 crore. 1 crore. But यहाँ क्या दिख रहा है? 10 million. 10 million. So we all know that 10 lakh is equal to 1 million. तो अगर मैं 10 lakh टाइप करूँ 1 million दिखे तो वो कैसे पॉसिबल है? It is possible through this, comma, a 0, double comma. Why double comma now? Because single comma will put a comma after 3 zeros. So if you want to put double commas, तो आपको डबल बार कॉमा लगाने पड़ेंगे और तब जाके वो 1 मिलियन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, ओके. सो दिस वाज, Sir, please again ये डबल कॉमा समझ में नहीं आया. मैं समझाता हूँ. मैंने यहाँ लिखा 10 लाख. 10 लाख है, ठीक है. ठीक है, 10 लाख लिखा है. मुझे इसे 1 मिलियन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब कैसे करूंगा? अब सपोज आपने कहा कि सर ने ये समझाया था, मान लो कोई अभी मीटिंग लेफ्ट कर देता है तो वो क्या बोलेगा? सर ने कहा था कि 0 लगाना और यहाँ पे लिख देना इन्वर्टेड कॉमास के साथ k. लगा दिया भैया, क्या आ गया? 1000 k लिखा हुआ आ गया. यस. लेकिन मुझे k नहीं चाहिए, मुझे m चाहिए. तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा चलो m चाहिए ना, एक काम करते हैं k की जगह m लिख दो. बट नकल में भी क्या चाहिए? ओके. अकल. It is not what 10 lakh is not equal to 1000 million. It is equal to 1 million only. So how do I convert into 1 million? Put one more zero. Put one more comma. Sorry. Comma. Yeah. Yes. So how do I put one more comma? So I will have to just use control this One. number format, custom format. यहाँ जाके आपको एक और comma लगाना पड़ेगा और करेंगे आप ओके. तो देखो 1 मिलियन आ गया. ठीक है. Okay. So for billion we have to put 3 commas. Yes. For billion we'll have to put 3 commas. Control 1. Okay. और यहाँ पे आपको 3 commas आप लगा दो तो ये बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे नहीं हुआ. जितना लिखोगे आप तो बिलियन दिखेगा आपको. m की जगह b करना पड़ेगा. हाँ. ठीक है, ये है. नाउ लास्ट थिंग, टू ऐड स्पेस. टू ऐड स्पेस का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, आई हैव सम नंबर्स ओवर हियर 10.2, 1.1, 52.6, 45.2 एंड ये.
अभी सब जगह आपको डॉट एक ही जगह पे दिख रहा है यहाँ पर, Yes. ठीक है, बट कैन यू सी समथिंग कि ये 2 6 और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये देखो माइनस में लिखा हुआ है, लिखा हुआ किस में है, माइनस में, Minus में. आ कैसे रहा है, ब्रैकेट में। Bracket. ये तो सबको पता है ये कैसे होता है, ये सिंपल है, नंबर फॉर्मेट में आप कर दो और यहाँ पे आप कर दो कि यूज दिस, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो। अब ये कैसा आएगा, रेड में आ जाएगा। सो रेड मींस इट्स अ नेगेटिव नंबर, और आप माइनस करोगे तो अब ये माइनस में आ गया। लेकिन ये कैसे हुआ, ये नंबर से हुआ, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहिए हमारे को ये चाहिए ब्रैकेट के साथ में, मतलब नेगेटिव नंबर जो आए वो ब्रैकेट में आए। और ब्रैकेट, अभी देखो ये क्या हुआ, अलाइनमेंट चेंज हो गया है यहाँ पर, Yes, sir. चेंज हो गया ना, डॉट भी आगे खिसक गया इधर का, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस थी वो चला गया है। वो क्यों, क्योंकि, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 10.23, लेकिन दिख क्या रहा है 10.2, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रही है एक जगह, ब्लैंक। Yes, sir. ये कैसे हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या यूज किया है, हमने स्पेस ऐड किया है, स्पेस ऐड किया है। अब स्पेस कैसे ऐड होता है बताता हूँ आपको, Underscore. अंडरस्कोर से, ठीक है। सो अंडरस्कोर आपको यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल 1, अगेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल 1, ठीक है, कंट्रोल 1। 0 इज एनी वैल्यू इन एक्सेल डॉट 0, मतलब एक डेसिमल के बाद एक स्पेस, एक वो डेसिमल पॉइंट दिखाएगा, और उसके बाद मैंने लगा दिया अंडरस्कोर, मतलब एक स्पेस दिखाएगा, और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज का मतलब कि यहां तक आपको स्पेस दिखानी, ये पेरेंथेसिस क्लोज करा है, ब्रैकेट नहीं करेगा। और फिर हमने लगाया इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है 0.0। तो मैंने आपको जब ये फॉर्मेट का थ्योरी पढ़ा रहा था, मैं कस्टम फॉर्मेट की थ्योरी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 सेगमेंट्स, Positive, negative, 0. पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और टेक्स्ट, और इनको सेपरेट हम करते हैं किससे, सेमीकोलन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सेमीकोलन लगा है इसका मतलब कि वो नेगेटिव नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल 1 दिस कॉमा और सेमीकोलन एंड इन ब्रैकेट 0.0, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम चीज है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था, इसको वापस वही वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर गया वो, ये रहा, ठीक है। अब करते हैं ओके। अभी देखो क्या हुआ, 45.2, अब ये सारे एक जैसे क्या हो गए, अलाइन हो गए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस आ गया, ठीक है। तो स्पेस ऐड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर, you will use a underscore to add a space. So this is all elements of custom formatting. You will not understand this by attending a class simply. So I will upload this on my YouTube channel. आप मेरे चैनल पे जाके कस्टम फॉर्मेट के नाम से देखेंगे तो आपको ये वीडियो वापस मिल जाएगा। You can spend some time over there and just revise what you have done, ठीक है। If you don't practice, you will forget. It's a custom format. हाँ, custom number format. Custom number format. Okay. Right. Now, last thing that we are going to cover is apply color. Now, whenever you type anything in Excel, I have typed 20, I have typed 30, I have 40. ये कौन से कलर से आ रहा है? By default, it is black. ठीक है? Now, if you want to change the color, what do? You go to the font and then you change the color. Suppose I want to make it red, I will go to the font and make it red. ठीक है? यहाँ जाके हम कर देते हैं इसको ब्लू, ये ब्लू हो गया, हमने जाके कर दिया ग्रीन, ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। बट आई हैव चेंज द फॉन्ट कलर यहाँ। नाउ आई वांट टू डू, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, इसको ब्लैक कलर करना चाहता हूँ, हो रहा है कुछ चेंज कलर? नहीं। क्या रह रहा है, रेड ही रह रहा है, ठीक है। यहाँ मैं जाके इसको करता हूँ येलो, हो गया ये, यस सर, येलो हो गया। मैं इसको ग्रीन करता हूँ, ग्रीन भी हो गया। ये रेड क्यों रहा और ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? Why it is not changing its color? कस्टम फॉर्मेट। Yes, you have applied a custom format. ठीक है. So whenever you want to apply any color to any number, suppose I want to have a blue color. जब भी मैं positive number लिखूं Excel में, वो blue color में आना चाहिए. तो what I can do is, whenever you have to specify number, you have to write the number, the color into square brackets, और यहाँ लिख दो आप blue.
ब्लू, ठीक है, और एक जीरो लगा दिया मैंने। नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? जीरो रिप्रेजेंट एनी वैल्यू, और ये वैल्यू मुझे किस कलर में चाहिए? ब्लू में। क्या हो गया? What has happened? It turns blue. It turns blue. Now I want to turn it black or green. Is it changing its color when I'm selecting? Not from here. Not from here. Not from here. If I want to change the color again, what I have to do is from here I will have to change the color from here. Suppose I type green, GREEN. Now is it changed the color to green, light green? Can you see? Yes. So this is called as custom formatting, and this is very powerful tool of Excel. ठीक है. Now suppose I put यहाँ पे तो मैंने green, ये blue ही है, इसको हम red कर देते हैं, तो I'll put a red color over here, red, RED. Can you see it is changing to red color now? It has changed to red color. Yes, sir. Okay, so this is green, this is a red. Now, when I want to change something on the negative side, what I have to do is 0, that means a positive number. ये मेरे को black में चाहिए तो मैंने black ही रखा है, लेकिन black के साथ में सेमीकोलन के साथ जो नेगेटिव नंबर है वो कहाँ आना चाहिए? वो रेड कलर में आना चाहिए, ठीक है, तो वो रेड में आ रहा है. Now have you ever seen, or can we ever do like this? Okay, this is the number. Before decimal I want blue color, and after decimal I want red color. Have you ever seen this kind of thing in Excel? And is No, it sir. possible also? क्या ये possible है मैं यहाँ से इसको blue कर दूं और नहीं. इसको मैं red कर दूं? क्या ये possible है? नहीं. नहीं है. यहाँ वो दिखा रहा था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, बट मैं आपको possible करके बताता हूँ, ठीक है, and let's do it. How would I do it? First 0. No, first you will mention the color. Suppose I want Okay. to put it blue, ठीक है, तो blue Then and 0. 0, ठीक है, then put a Yes. dot, ठीक है, then put a red color, RED red, and then put a 0. I think it will not take because, okay, I'll put it in bracket. So it has taken 10.2 in blue because this is the, I did not apply semicolon. I have to apply semicolon, sorry. So 10 point, this is, and then semicolon, and then apply red, and sorry. And instead of general, you just write 0 over here. बट से डेसिमल तो हमने कहीं पुट नहीं किया. हाँ, डेसिमल तो हमने पुट नहीं किया, तो डेसिमल डिजिट नहीं शो करेगा ना. हाँ, डेसिमल डिजिट शो नहीं करेगा, तो या तो कॉलम decimal, के बाद या पहले डेसिमल डालना पड़ेगा. ठीक है, अभी देखते हैं. हाँ, बट ये जो मैं चाह रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ये जो सेपरेटर है ये तो नेगेटिव नंबर का होता है, तो पॉजिटिव नंबर में आप 2 कलर नहीं दे सकते हैं, ठीक है. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई लाइक दिस, कि सपोज this is one value and this is another value, and then you put a 0 over here and let's see if it is working. No, it will not. Okay, it was an experiment, but anyways, ठीक है. So this was all about number formatting. So ये सब चीजें जो मैंने आपको दिखाई है, बताई है, ठीक है, this you can try with the things. This file I'm going to share in my groups, which is there. And if you want to get a copy of this file and you're not a part of this my groups, then I'm sharing the link to join my group on the chat box. You can be a part of the group, and then you will get the file. So we share
daily stuff on Excel, and I conduct these kind of sessions on every Saturday, and that is live. So you'll get the information about the next session in the group itself. So So can we get the group link in chat? yes, yes, I'm just posting it in the chat box. So just give me one moment. So now it is there in the chat box. You can click and join. Okay. So any questions, anyone? I'm just going to share this in the group also, and I'm going to drop this file into the chat box also. So how did you find this session? I hope Very informative, sir. so the file is open. I'll not be able to share it. Okay. I've shared the file in the chat box also, and it will be shared in my groups. So any questions, anyone, before we close the session? Yes, I have one doubt. Yes. So अगर हम कोई भी number लिखते हैं, like we write 100, then 0.7, okay, हम्म, तो वो round off होके अगर मैं उसको round off करता हूँ तो वो 101 दिखाएगा. ठीक है. तो instead of that, I want कि वो 100 ही दिखाए. मतलब कि मैं चाहता हूँ कि round off जो above number पे होता है वो ना होकर lower number पे रहे. Okay, you have to use a function called round in that case. I will show you. Yes, sir, तो please. आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके उसके लिए you have to use a function which is called as round. ये custom formatting से नहीं होगा, ठीक है? So I am sharing my screen again, and I hope it is visible now. Yes, sir. Okay. So what you are saying is, suppose you are typing this number. ठीक है, and we type one more number 100.760. ठीक है, now what do you want? I want कि वो 100 ही show करे, मतलब round off में वो round down हो, round up ना हो. Round down हो, तो there is a formula called round down, ठीक है, and then you can select this number and say okay, and you'll have to put how many digits you want after the number. So now it will round down. Suppose I copy this formula over here, so here also it will round down only. ठीक है, So can you show the 101 नहीं formula? किया. Like, can you show the formula again? Yeah, so this is the formula, round down, and then the number which you want to round down, and then how many this thing number of places you want. So you, if you want 2 digits, you can put number of digits like this. So I put 0. If you put 1, it will show you 1 decimal, and basically you have to put 0 only because you want to round it off to down. So that is how you have to do it. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. And I'm just putting my number also on the chat box. So if you are not the part of the group, you can join through the this thing, the link, and you can write your name and WhatsApp me. I will add you to the groups. And I also run a channel with the name Sialuk City Excel Vibes. So all these and many more videos are there on the channel. You can visit my channel and you can enrich your knowledge on Excel from there. We also conduct courses on Excel, so you will get all the information on the group as well as on the channel. So thank you for joining in, and still if you have any questions, we can take 1 or 2 questions more, and then we can close this session. I'm sharing my channel link also on the group. So if you have, you can visit the channel, and you can subscribe even, so that you get an idea of the latest videos. And I'll upload this by tonight or tomorrow. You can visit that link and see it again. Okay, so I don't think anyone has any questions to ask. If you want to ask anything apart from this, you are even free to ask, or else we can end this session.